Good morning, everyone. And this is again a joy for me and my family to be here after long. और सबको गुड मॉर्निंग। और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ बहुत समय बाद अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ। Yeah, and today I came with a knife to the church. और आज मैं कली से यहाँ पे एक चाकू के साथ आया हुआ हूँ। And I want a volunteer to come here. और मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ एक सहायक यहाँ पे सामने आ जाए। Anyone daring to come before me? क्या कोई है यहाँ पे जो yes. आ सकते हैं? Okay, fine. I'll ask you to just get that plastic there. Yeah. Yes, you can be just here. Yeah. So he volunteered himself to come before me with the knife, seeing that I am holding a knife in front of everybody. And you know what you see there, just one packet? Yeah, these are tomatoes. Good looking tomatoes. और ये बहुत ही अच्छे दिखने वाले टमाटर हैं। I can cut it. मैं इसे काट सकता हूँ। I can chop it. मैं इसे छोटे-छोटे टुकड़े में काट सकता हूँ। I can crush it. मैं इसे टुकड़ा कर सकता हूँ। I can squeeze it. मैं इसे दबा सकता हूँ। And that's what I want you to do. और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही करें। So if there are volunteers, you can just give the tomatoes to everyone. और अगर यहाँ पे कोई वॉलंटियर्स है तो वो सभी को टमाटर दे सकते हैं। Yeah, if you see this, it's so good looking, you know, it's red. और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखता है और इसका रंग लाल है। And you can see there also, I guess, on the screen. और मुझे लगता है कि आप शायद यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। But you know, it didn't come out overnight. और आपको ये मालूम होगा कि ये एक रात में नहीं बन गया। It went through a process. और ये एक प्रक्रिया से होके गया है। And now it's a vegetable. और अब ये हम अब इसे खा सकते हैं। It's a vegetable और or a fruit. और ये सब्जी है या एक फल है। Now, if somebody has read botany, they may argue, no, it's a vegetable. Somebody may say, no, it's a fruit. अगर किसी ने बॉटनी पढ़ाई की है तो वो बोलेंगे नहीं ये सब्जी है। किसी ने कोई बोल सकता है ये फल है। But it is to be consumed. लेकिन इसे खाया जाना है। And if suppose like I leave this tomato just in my house for some time. अगर ऐसा मान ले कि मैं इस टमाटर को अपने घर में कुछ समय के लिए छोड़ दूं। Just guess for how many days I should leave it? और सोचिए कितने दिन तक मैं छोड़ सकता हूँ इसे ऐसे ही। 2 days, 2 weeks, 2 2 months, 2 महीना। Well, after 2 months, this will be consumable? क्या 2 महीने के बाद इसे खाया जा सकता है? No. And that's why there has a purpose for this tomato. God has created that for. और इसीलिए इस टमाटर का एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बनाया है। And you know, when it is there, it has to be protected from so many things. और अगर जब ये ऐसा है तो हमें इसे बहुत सारी चीजों से सुरक्षित रखना है। The birds, the insects. और पक्षियों से, कीड़ों से। Even the thieves. और यहाँ तक कि चोर से भी। And just imagine that we are like tomatoes. और ऐसा कल्पना करें कि हम टमाटर के समान हैं। Red. लाल। Bright. और चमकदार। But are we willing to be consumed by the community? क्या लेकिन हम अपने समाज के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार हैं? And to get this tomato to be consumed, one may just eat like that. और अगर कोई चाहता है कि इसे खाए तो बस इसे ऐसे ही खा सकते हैं। Last night also there was a small feast. और कल रात भी एक छोटा सा भोज था। And I was there. और मैं वहाँ पर था। And I saw there were salads. और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ सलाद था। And these tomatoes were probably cut by knives. और वो जो टमाटर था वो चाकू के द्वारा काट के रखा गया था। Ready and good looking for us to consume it. और तैयार और बहुत अच्छा दिख रहा था और हम इसे खा सकते थे। And sometimes you can do some dressings also with a lot of things over it. और आप कई बार इसके ऊपर ड्रेसिंग कुछ चीजों को डाल के कर सकते हैं। But the process of preparing that for you to consume it is not easy. लेकिन इसे खाने के लिए तैयार करने का जो प्रक्रिया है वो करना आसान नहीं है। Imagine now it is in your hand. और कल्पना करें कि आपके हाथ पे हैं। It is all washed and cleaned. और ये पूरी तरीके से साफ और पूरा अच्छे से साफ किया गया है। It's consumable. और इसे खा सकते हैं। You can eat, take a bite. और आप इसे एक बार आप चबा सकते हैं इसे। Or you can take the knife from here, cut it. या फिर यहाँ से चाकू लेके एक बार काट सकते हैं। Or you can make something which I'll tell you. और या फिर कुछ और बना सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा।
You can just gently put it down on the floor. The floor is also clean, I guess. और आप इसे आराम से जमीन पे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जमीन भी काफी साफ है। Without taking it out from the wrapper. और इसे रैपर से बाहर निकाले बिना And then crush it. और इसे आप पूरे तरीके से क्रश कर दे, तोड़ You दे। press it, you beat it, you do whatever you want to do, just do that. और इसे क्या करें, आप उसे दबा दे और पूरा इसे कूच दे और आप जो चाहते आप कर सकते हैं। That is what probably the world does to us. और शायद यही दुनिया भी हमारे साथ करती है It's painful. और ये बहुत ही दर्द भरा है। You will lose your identity. और आप अपनी पहचान को इस्तेमाल करते हैं You will never be the red, bright, round shaped person और हो सकता है कि आप कभी भी लाल और बिल्कुल गोलाकार ना हो, because that's not your purpose. क्योंकि यह आपका उद्देश्य नहीं है। Even Christ said the same thing. यहाँ तक कि मसीह ने भी यही बात कहा है He invited us for a call, और उन्होंने हमें एक बुलाहट के लिए एक बुलाया है and then that call is to be slain. और वो बुलाहट है कि हम उनके लिए मारे जाए It's not easy. और ये आसान नहीं है। How many of us has actually understood this? और आप में से कितने लोग वास्तव में इसे समझे हैं? I'm happy that the song was going on healing. Heal me. और मुझे बहुत सुन के आनंदित हुआ मैं कि उस चंगाई के विषय ये गाना हम गा रहे थे। And I was wondering like what were the theme or the talk that the two speakers on the two previous services said. और मैं सोच रहा था कि पहले दो जो सर्विस हुए उसमें जो प्रचारक थे उन्होंने किस बारे प्रचार किया होगा। And I could come out with this theme called Renew and Restore. और मैं इस थीम के साथ आ पाया कि फिर से नया करना और पुनः स्थापन करना। Yeah. And then this is a message of hope for the broken people. और यह जो संदेश है ये टूटे लोगों के लिए आशा का संदेश है। And then there's a call there, repent and obey. और फिर एक वहाँ पे बुलाहट है कि आज्ञा मानो और पहले पश्चाताप करो और आज्ञा मानो। I will invite somebody to read from Jeremiah chapter 30 verses 12 to 17. और मैं चाहूंगा कि कोई पढ़ दे यिर्मयाह उसका अध्याय 30 का पद 12 से लेकर 17 तक। First we can go in Hindi because that's right here, and then somebody can read in English. पहले हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे फिर कोई इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? English. Thank you. This is the theme for this year, I guess, because I have been seeing many organizations are putting this theme called Renew and Restore. और मुझे लगता है कि इस साल का जो यह शीर्षक है वो पूरे साल के लिए है, क्योंकि मैंने बहुत सारे संस्थाओं को देखा है कि वो इस थीम को रख रहे हैं, जो है फिर से नया करना और पुनः स्थापन। And interestingly, this is a local theme, a state theme, or a national or a global theme.
और रुचिकर बात यह है कि यह क्षेत्रीय में भी और ये पूरे हमारे देश में और पूरे वैश्विक रूप से ये पूरा शीर्षक पूरी दुनिया में है। And that's the call, I guess. That's the need for the present time in this pandemic world. और यह अभी महामारी के समय में यही हमारी जो बुलाहट ये हम सबों के लिए है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you once again for giving us this time to be present before you. और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें फिर से समय दिया कि हम आपके सम्मुख आ सके। We pray, Lord Jesus, that let this word that was read और प्रभु जी ये जो वचन अभी पढ़ा गया bring much blessings and understandings and healing to us. और यह बहुत हमारे लिए चंगाई समझ और हमें बुद्धि दे। And we look on to your wisdom and knowledge for being obedient towards your call. और प्रभु जी हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम आपकी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। If you see, I will be concentrating on this particular verse, that is Jeremiah 30, verse 17, and the first part. और अगर आप देखेंगे तो मैं अभी एक पद पे ज्यादा बात करूंगा, वो है यिर्मयाह उसका अध्याय 30 का पद 17। But I will restore you to health and heal your wounds. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। So if you see the 30th chapter, it's very interesting. अगर आप देखेंगे ये 30वां ये जो हमारा अध्याय है वो बहुत ही रुचिकर है। And it starts with God instructing Jeremiah to do something. और ये शुरू होता है कि परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ यहाँ पे निर्देशन दे रहा है। He talks to Jeremiah while he was sleeping. और वह यिर्मयाह से बात करता है जब वह सो रहा था। And Jeremiah could see the vision and hear the voice of the Lord. और यिर्मयाह दर्शन देख पा रहा था और परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा था। And there is a promise of the Lord. और वहाँ पे परमेश्वर का एक वायदा है। We were singing a little while back, reminding God to keep his promise. और अभी थोड़ी देर पहले हम परमेश्वर से गा रहे थे कि परमेश्वर अपने वायदे को याद कर। In fact, like it's the other way around. और इनफैक्ट ये बिल्कुल उल्टा है। He never forgets his promises. वो कभी अपने वायदे को नहीं भूलता। We forget the covenant or the promise that we make to him. लेकिन हम भूल जाते जो वाचा हमने उनसे बांधी है। And here he says, Jeremiah, take the pen, take the paper, take the diary and write down what I'm saying to you. In the verse 2. और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है पद 2 में कि तू अपना पुस्तक ले और अपना कलम ले और लिख ले जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। And then he says, और फिर वो कहता है, and you can read that whole chapter later on. और फिर बाद में आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। But as I said, like I'll be just focusing on the 17th verse, the first part. और जैसे मैंने कहा कि मैं 17 पद का पहले भाग में अभी मैं ध्यान दूंगा। Restoration is promised. और यहाँ पे जो पुनर्स्थापन है यहाँ पे वायदा किया गया है। And the God who makes things new, he renews, is there. और जो परमेश्वर नया करता है वो यहाँ पे नया कर रहा है और यहाँ पे वो चीज है। The restoration promised here was after the Babylon captivity. और यहाँ पे बेबीलोन के जो बंधुआई के बाद यहाँ पे पुनर्स्थापन का वायदा किया गया। It also implies to the final restoration under Christ. और या उस वायदे के या उस पुनर्स्थापन के बारे में बात करता है जो मसीह के द्वारा मिला। So if you see, this is the map of the place. और ये आप देख सकते हैं कि यह जगह का एक मानचित्र है। You see a lot of countries around. और वहाँ पे बहुत सारे देश देख सकते हैं। And you see the Babylon Empire and the Babylon captivity of Judah. और वहाँ पे यहूदा का बेबीलोनियन एम्पायर देख सकते हैं। And we'll go further. और फिर हम आगे बढ़ेंगे। The old Babylon Empire was at the peak during the days of Abraham. और अब्राहम के समय में जो बेबीलोनिया का जो सम्राट था वो बहुत ही ऊंचाई पर था। And the new Babylon Empire existed from 606 BC to 536 BC. और जो नया बेबीलोनियन का जो सम्राट था वो 606 से लेकर 536 BC तक था। They completely conquered Judah in 586 BC. और 586 BC में उन्होंने यहूदिया पर वो उन्होंने विजय को पाया। Then under the rule of King Nebuchadnezzar, और उसके बाद नबुकदनेस्सर राजा के अंडर में उन्होंने रूल किया। they completely devastated the city of Jerusalem. और उन्होंने यरूशलेम के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। They looted and burned the original temple of God built by Solomon. और सोलोमन के बनाए गए जो मंदिर था परमेश्वर का उसको उन्होंने लूटा और पूरा बर्बाद कर दिया और जला दिया। They took captive
the people of Judah, including the prophets Daniel and Ezekiel. और यहूदा के लोगों को उन्होंने बंधुआई में ले लिया और उसमें प्रोफेट डैनियल और एजिकियल भी थे। Jeremiah wrote this in 627 BC to 586 BC. और यिर्मयाह ने इसे 627 से 586 BC में लिखा। He wrote to the people of Jerusalem, Judah, the southern kingdom. और उन्होंने यरूशलेम के लोगों को लिखा, यहूदिया जो कि दक्षिणी राज्य था। He urged God's people to turn from their sins and return to God. और उन्होंने इस बात की याचना की कि परमेश्वर के लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और लोग परमेश्वर के पास वापस जाएं। His theme is repent and return to God, और उनका जो शीर्षक था वो था पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस जाओ, or God will punish you. या तो परमेश्वर न्याय करेगा। However, punishments are corrective. और हालांकि जो सजा देना है वो बिल्कुल सुधारने के लिए दिया जाता है। It protects us from the consequences of sin. और यह हमें रक्षा करता है पाप के परिणाम से। If you read the 11th verse अगर आप 11वां पद पढ़ेंगे on the same chapter, Jeremiah 30th, और यिर्मयाह उसका 30 का, we'll see in Hindi and then English. और हम लोग पहले से हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। We see here God's anger is there. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो यहाँ पर है, His annoyance is there. और वो जो बिल्कुल परेशान हो गए हम इसे देख पाते हैं, He is not happy. और वो खुश बिल्कुल नहीं है। And it's not that he is not happy with the pagan nations. और वो ये बात है कि पेगन नेशन से वो खुश नहीं है, He is also not happy with Judah. और वो यहूदिया से भी वो खुश नहीं है, He is also not happy with the Israelites और इजराइलियों से भी परमेश्वर खुश or नहीं the है, Jews. या फिर यहूदियों से। And that's why he says, I am going to spare you, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, but you will not go fully unpunished. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम बिना सजा पाए तुम जा पाओगे। But to your enemies, लेकिन बहुत सारे जो शत्रु हैं, because of me, और मेरे कारण जो शत्रु हैं, I will destroy them. मैं उन्हें नाश कर डालूंगा। And then we see Jeremiah received these words while he was sleeping. और हम देख पाते हैं कि यिर्मयाह इन चीजों को तब पाया जब वह सो रहा था। God spoke to his people in their dreams that time. और उस समय में That was one of the way. और परमेश्वर उस समय स्वप्नों से बात करता था, और ये एक तरीके में से एक था। God instructed Jeremiah to write his words in the book. और परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस बात का निर्देशन दिया कि उसे एक पुस्तक में लिखे। We saw that in Jeremiah 30 verse 2. और हमने देखा यिर्मयाह उसका अध्याय 30 का पद 2 में Again he reminds. फिर से वो याद कराता है। If you go to Jeremiah chapter 36, अगर आप यिर्मयाह उसका अध्याय 36 में जाएंगे, again in verse 2, और फिर से पद 2 में, he again says, और फिर से वह कहता है। I was wondering, did Jeremiah miss something to write? और मैं सोच रहा था क्या यिर्मयाह कुछ लिखना भूल गया था क्या, That again he's reminding, write it down. कि वो फिर से कहता है कि दोबारा लिख। And one of the implications that we can draw from here, और एक बात और जो हम समझ सकते हैं इस बात से, that he calls us also to write. और कि वो बोलता है कि हम लिखे, And he says, और वह कहता है write every conversation that we make in your prayer journal. कि जो बातें मैं तुमसे करता हूँ अपने प्रेयर जर्नल में उसे लिखो, And see what I am doing for you. और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। We go ahead. हम आगे बढ़ेंगे। Restoration is promised. If you see the chapters 30, 31, 32, 33, 4 chapters, God is promising the restoration. और अगर आप देखेंगे यिर्मयाह उसका अध्याय 30, 31, 32 और 33, आप देखेंगे इन चारों अध्याय में जो पुनर्स्थापन है वो वायदा किया गया है। And if you see, like, what does this word restoration mean? और अगर आप देखेंगे ये जो पुनर्स्थापन है या फिर सब कुछ ठीक कर देना, इसका मतलब क्या है? I picked up certain phrases. और मैंने कुछ फ्रेजेस लिया है। To put somebody something back into his or her its former position. कि किसी भी व्यक्ति को या किसी चीज को पहले जैसा था वैसा ही कर देना। God's role in making such transformation is talked about. और यहाँ पे परमेश्वर जो इस परिवर्तन को करता है इस बारे यहाँ बात किया गया है। Other key word is renew.
और दूसरा जो यहाँ पे हम मुख्य बिंदु देखेंगे वो है नया करना। The dictionary meaning, the phrase there, और यहाँ पे अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इस फ्रेज का मतलब है to give somebody newness or to start something again. यह है कि किसी को फिर से नयापन देना या किसी चीज को शुरुआत करना। But if you read the entire book of prophets, लेकिन यदि आप भविष्यवक्ता के पुस्तक को फिर से दोबारा पढ़ेंगे there is theme again going, और फिर से ये जो शीर्षक है वह फिर से शुरू हो रहा can be है a word redemption. और वहाँ पे वर्ड आप पा सकते हैं छुटकारा, That also means a new beginning. और उसका यह भी मतलब है एक नई शुरुआत। So Jeremiah is talking in chapter 1 to chapter 24, in all these 24 chapters, about redemption. और यिर्मयाह अध्याय 30 उसका पद 1 से लेकर 24 तक वो यहाँ पे नई शुरुआत या छुटकारे के बारे में बात कर रहा है। The act of purchasing back something previously sold, delivering from sin. That is what redemption means. और यहाँ पे छुटकारे का मतलब ये है कि जो पहले बेचा जा चुका था उसको फिर से खरीदने का जो कार्य है वो है कि पापों को क्षमा करने के द्वारा Reconciliation. और यहाँ पे फिर से दोबारा सब कुछ ठीक कर देना। As I was thinking on these two words, renew and restore, और आइज़ाया इस बारे सोच रहा था पुनः स्थापन और नया करने के बारे में, even I was thinking, और यहाँ तक कि मैं भी सोच रहा था, and that word comes is reconciliation. और यहाँ पे यह शब्द आता है कि सब कुछ ठीक कर देना, मेल मिलाप कराना। That means a new people. वह है नया लोग, A reconciliation with the newness. Yes, what you said. And that theme you can see in Jeremiah 31, 1 to 30. और यहाँ पे लोगों से मेल मिलाप करने के बारे में आप देख सकते हैं यिर्मयाह उसका अध्याय 31 का पद 1 से लेकर 30 तक। Making people friendly again, an element of salvation. और लोगों को फिर से लोगों के बीच में मित्रता लाना और फिर वहाँ पे उद्धार की बातों को फिर से लाना। And again there can be a word called regeneration. और यहाँ पे एक आप शब्द देखेंगे कि फिर पीढ़ी को नया करना, A new covenant. और एक नई वाचा। Jeremiah talks about this in chapter 31, verses 31 to 40. यिर्मयाह ये इस बारे बात करता है अध्याय 31 का पद 31 से लेकर 40 तक। It's a new formation. The transformation that God is talking about is a new formation and a spiritual renewal. और जो परमेश्वर यहाँ बात करता है वो यह है कि फिर से सब कुछ को सृष्टि करने के बारे और आत्मिक रूप से नए करने के बारे में। And here again we see in chapter 32 and 33, Jeremiah is talking on the restoration of the new land and kingdom. और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि यिर्मयाह अध्याय 32 और 33 में वो पुनः स्थापन के बारे में बात करता है, नए लैंड के बारे में, यरूशलेम के बारे में। And if you read Isaiah chapter 1 verses 5 to 6, somebody can read in English first. और अगर आप देखेंगे यशायाह उसका अध्याय 1 का पद 5 से लेकर 6 तक, पहले को इंग्लिश में पढ़ देंगे। Thank you. तुम बलवा कर 5, 6. तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। धन्यवाद. If you see, Isaiah's ministry was 100 years, roughly, it can be a little more, 100 years prior to Jeremiah's. अगर आप देखेंगे तो जो यशायाह का जो मिनिस्ट्री करने का समय था वो यशायाह का जो मिनिस्ट्री करने का समय था वो यिर्मयाह के 100 साल पहले तक चल रहा था। And then we see in Isaiah's days, Judah was a very sick nation. और यशायाह के समय में जो यहूदा है वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही बीमार नेशन था। There were superficial ministry and false prophets. और वहाँ पे सुपरफिशियल मिनिस्ट्री और वहाँ पे गलत भविष्यवक्ता थे। And in that span of 100 years or so, और उस 100 साल में the scenario became worse in Jeremiah days. और वहाँ का जो दृश्य है वो यिर्मयाह के समय में और भी ज्यादा खराब हो गया। And God also became sick of Judah. और यहाँ तक कि परमेश्वर भी यहूदिया से परेशान हो गया।
The Israelites continued sinning और जो इजरायली हैं वो पाप करते गए as individuals and corporates and as nation. और वो व्यक्तिगत रूप में एक साथ और एक राष्ट्र के रूप में They refused to know God and understand God. और उन्होंने परमेश्वर को जानने से और उनको समझने से उन्होंने इनकार किया They rebelled and forsook the Lord. और उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर को छोड़ दिया They had broken their moral and spiritual covenant. और उन्होंने अपना नैतिक और जो आत्मिक परमेश्वर के साथ वाचा था उसे तोड़ दिया Jeremiah 10, chapter 10, verses 19 to 21 and 15 to 18. यिर्मयाह उसका अध्याय 10 उसका पद 19 से 21 This और 15 portion, से 18 yes, this portion talks about disasters and destruction. और यह बात करता है त्रासदी और नाश के बारे में And we see like that's happening now also. और हम देखते हैं कि वो अब भी हो रहा है And how many of us are interested in trekking or mountaineering and all that? Anybody? और हमें से कितने लोग यहाँ पे इस चीज में उन्हें करना अच्छा लगता है कि माउंटेन्स में चढ़ना My daughter is doing like this. Yeah. So if you are a trekker or a mountaineer, you will see from a distance one range, and that's or one image of hills or mountain. और अगर आप पर्वत में चढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है और पूरा एक के बाद एक आप पहाड़ की चोटी को देख सकते हैं Yeah, she understood what I was going to say. So when you see from a distance, there's just one outline. अगर But आप yeah. दूर से देखेंगे तो वहाँ पे बस एक आपको एक लाइन की जैसा दिखेगा But when you go closer, लेकिन अगर आप नजदीक जाएंगे you will see yet another one coming up. फिर आप पाएंगे कि एक और पहाड़ आ रहा है And then you go closer, और फिर जब आप नजदीक जाते हैं there's many more. तब वहाँ पे और आता है And the distance between the two range of hills or mountains, और जो दो पहाड़ की श्रृंखलाओं के बीच में जो दूरी है that is so far. वो बहुत बहुत लंबा है But when you see from the far away distance, लेकिन अगर आप दूर से उसे देखते हैं there is just one outline. तो आपको सिर्फ एक रेखा के जैसे दिखेगा So here also God's revelation is something like that. और यहाँ परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो बिल्कुल वैसा है When you see from distance, अगर आप दूर से देखेंगे it will be one outline. एक बस रेखा के जैसा आपको But दिखेगा when you come closer to His word and His to Him Himself, अगर आप उनके वचन और उनके सम्मुख आप आएंगे then you see there are many more folds. तो वहां पे आप देखेंगे और ये खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है And what was said that time, और जो उस वक्त कहा गया था maybe like say average 650 BC, अगर कहे 650 BC के It's happening तक now. अभी हो रहा है वो and we see like different waves of destruction. और हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके का अब नाश हम देख पाते हैं There, वहां पर the first wave of destruction was immediately in 605 BC. और वहां पे जो विनाश का सबसे पहला वेव था वो था 605 BC में And the second wave came in 597 BC. और दूसरा जो वेव आया वो था 597 BC में And finally, the third wave came when Judah was completely destroyed in 586 BC. और उसे मिस्र भेज दिया गया उसके इच्छा के विरुद्ध में He was rejected by his loved ones, family, friends, neighbor, false priests, prophets, and kings. और उसके खुद के प्रियजनों ने उसका इनकार किया उसके दोस्तों ने उसके परिवार ने उसके पड़ोसी ने और जो गलत भविष्यवक्ता हैं और पासवानों के द्वारा और राजाओं के द्वारा भी As per worldly standards, he was not successful. और अगर हम दुनिया के तौर पर देखें तो वो बिल्कुल सफल नहीं था 2 days back, there was a batch of nursing students who were graduating from St. Barnabas Hospital. और सेंट बर्नबास से कुछ एक बैच के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट कर रहे थे I was asked to speak something, और मुझे बोला गया कि मैं कुछ बोलूं वहां पर and I said many things. और मैंने बहुत सारी बातों को कहा But one thing I was reminded of then, लेकिन वहां पे मैं एक चीजों के बारे मुझे याद आया that is a quote from Mother Teresa. और मदर तेरेसा के एक कथन का She says, और वह कहती है we are not called to be successful, हम सफल होने के लिए नहीं बुलाए गए but हैं we are called to be faithful. लेकिन हम विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए The हैं will of God will not take us to a place और परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमें एक ऐसी जगह नहीं ले जाएगा where the grace of God will not keep us. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें रखेगा That's very important. और यह बहुत जरूरी है However, और ऐसा
Jeremiah remained obedient and faithful to Lord God. और यिर्मयाह परमेश्वर यहोवा के प्रति वह आज्ञाकारी और विश्वास योग्य रहा। He continued to declare God's message, और वो लगातार परमेश्वर के संदेश को वह घोषणा करता गया, बताते गया। announced the covenant between God and his people. और परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में जो वाचा थी उसका उसने घोषणा की। And wept over the fate of the nation. और उस राष्ट्र का जो फेट था उस पर वो रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। Jeremiah 30:12 to 17 that we saw, और यिर्मयाह उसका अध्याय 30 का पद 12 से लेकर 17 जो हमने देखा, he used medical language. और उन्होंने यहाँ पे चिकित्सक कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया है। There was no medicine that could cure Judah. और वहाँ पे कोई दवाई नहीं थी जो यहूदा को चंगा कर पाया। The idea conveyed is that sin is terminal. और उन्हें यह आइडिया पता चला कि यह जो सिन है वो कभी दूर नहीं हो सकता। Sinful people cannot be cured by simply being religious or doing good. और जो पापी लोग हैं वो लोग सिर्फ अच्छे धार्मिक कामों करने से या भलाई काम को करने से वो उनका पाप क्षमा नहीं हो सकता। Primarily, these wounds or sickness were because of disobedience and unfaithfulness. और यह जो सारे घाव थे और यह जो बीमारी थी वो अनाज्ञाकारिता और अविश्वास योग्यता की वजह से था। God used the Gentile nation to correct Israel. और परमेश्वर ने अन्य जाति के राष्ट्र को इस्तेमाल किया ताकि वो इजराइल को सुधार सके। However, in the last days, God will punish Gentile nations for the way they treated Israel, the Jews. और हालांकि अंतिम दिनों में परमेश्वर अन्य जाति के जो राष्ट्र है उसको वह सजा देंगे जिस प्रकार से उन्होंने इजराइलियों के साथ व्यवहार किया। He will prepare the Jews for the return of their Messiah. और वह यहूदियों को तैयार कर रहा है ताकि मसीह के वापस पुनः आगमन के लिए। There will be regathering of the Jews before the second coming of Christ. और मसीह के दोबारा आगमन के पहले यहूदियों का फिर से एक बार वो एकत्र होंगे, जमा होंगे। I have been to Israel. और मैं इजराइल जा चुका हूँ। And I have talked to the Jews also. और मैं वहाँ यहूदियों से बात कर चुका हूँ। They are still waiting for his first coming, Christ's first coming. और वो अब भी परमेश्वर के पहले आगमन के बारे यीशु मसीह के पहले आगमन किया अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। They believe Jesus Christ was a prophet. और वो इस बात को विश्वास करते कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता हैं। But then they are finding difficult to find him as the Lord. और ये उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बात को मानना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। They are preparing for the coming. और वह तैयार कर रहे हैं अपने आप को आगमन के लिए। For the Jews, probably it will be the first coming that they will be able to comprehend. और वो हो सकता है कि यहूदियों के लिए वो उन्हें ये लगेगा कि यीशु मसीह का यह पहला आगमन होगा। But we all are waiting for his second coming. लेकिन हम लोग सभी लोग उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। And the Jews are buying the land in the Mount of Olives. और जो यहूदी है वो जैतून के पहाड़ पर वो जमीन खरीद रहे हैं। Just opposite to the eastern gate. और वो पूर्वी जो गेट है उसके जस्ट ऑपोजिट में। It is written in the scripture. और यह वचन में भी लिखा है When the Lord comes, कि जब परमेश्वर आएगा everybody will see. सभी लोग देख पाएंगे। And he will enter the city of Jerusalem और वह यरूशलेम के शहर में वह प्रवेश करेगा from the eastern gate. और पूर्वी गेट से। So they are buying the land in the Mount of Olives. You know anybody what is there? और वहाँ पे वो जैतून के पहाड़ पे जमीन खरीद रहे। कोई कुछ जानता है कि वहाँ पर क्या है? It's a cemetery. और वह एक कब्रिस्तान है। And you know, like when they die, the Jews die, they are placed like this so that head will be towards that. और जब वो मर जाते तो उन्हें इस प्रकार से गाड़ा जाता ताकि उनका जो चेहरा है वो पूर्वी गेट के सामने में हो। And the scripture says, और परमेश्वर का वचन और वह जो जगह है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा जगह माना जाता है। and they're buying. और वह खरीद रहे हैं। And there's a movement happening और वहाँ पे ऐसा समय चल रहा है where the Jews are trying to come back to Israel. कि यहूदी लोग वापस से इजराइल आ रहे हैं। I don't know what brings them now. मुझे नहीं पता कि किस वजह से अभी आ रहे हैं। After 2000 years of time that has crossed. और 2000 साल जो बीत चुका है उसके बाद आ रहे हैं। But लेकिन there's a hope that the time is very near.
या आशा, हमें इस बात की आशा है कि वह समय बहुत नजदीक है Time is less. और समय कम है The land may not be available. और जमीन हो सकता है हमारे लिए उपलब्ध ना हो Opportunities may be not be there. और हो सकते हैं मौके हमारे लिए ना हो। We may die any day. हम किसी भी दिन मर सकते हैं। Right now is the time अभी वह समय है to receive Him, at least in our heart. कि हम उन्हें अपने दिल में ग्रहण करें। God will gather His people from all the nations of the world. और परमेश्वर अपने लोगों को हर राष्ट्र से अपने लोगों को एकत्र करेगा। You might feel lonely and separated from God. हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें कि आप परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और अकेले हैं। Be assured God does not abandon you. और निश्चित हो जाए कि परमेश्वर आपको ना छोड़े। Our sins cut us off from God. हमारे जो पाप है हमें परमेश्वर से अलग करता है। Restore a meaningful relationship with God. और परमेश्वर के साथ एक अर्थ से भरा हुआ एक उस रिश्ते को फिर से पुनः स्थापित करें। It can be many steps to do that, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज कर सकते हैं आप। but at least 4 like I have jotted down. और कम से कम मैंने 4 बिंदुओं को यहाँ लिखा है। Confess your sins, अपने पापों को अंगीकार करें, obey His instructions, उनके निर्देशन को माने communicate regularly, daily, time and again with Him, और हर दिन उनसे बातचीत करें। develop a personal relationship, personal intimate relationship with Him, और एक निजी और एक घनिष्ठता का आप रिश्ता उसके साथ आप बनाएं। The final restoration will occur when all the believers are gathered in Christ's kingdom. और जो अंतिम पुनर्स्थापन का जो चीज है वो तब होगा जब परमेश्वर के सारे जो विश्वासी है वो एक साथ आ जाएंगे। It may not be the geographical Israel or Jerusalem. हो सकता है कि जियोग्राफिक